Mm. Hi again. Guys, hope everybody is back. The people who are already here, please ping in the chat box. I need a quick head count. Okay. So, well, most of people already in. And well, I hope my audio and visual all are clear. Okay. Let's discuss a use case of whatever you have been through so far, various kinds of analytics and the life cycle, and if you know some nitty-gritty of the data. लेट्स सी क्या ये सब गुरु ज्ञान है या इससे वाकई कुछ होता भी है. So there is a use case by Uber. Not now, it was done several years ago when Uber was just a newcomer in India. And okay, just go through the problem statement. क्या आपको समझ आता है इससे? Just a backdrop of the problem. What do you get from it? हाँ जी. What do you understand from it? कुछ समझ आ रहा है किसी को? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? तो इस केस स्टडी के हिसाब से उबर को कस्टमर्स की रिक्वेस्ट, स्पेशली वो कस्टमर्स जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, दे हैड अ प्रॉब्लम इन फुलफिलिंग देयर रिक्वेस्ट. आई थिंक ये हो सकता है कि कैब्स नहीं मिलती होंगी या कैंसिल हो जाती होंगी, तो उन्होंने सोचा कि यही जो रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है उनको एनालाइज कर रहे हैं, लाइक टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, ड्रॉप ऑफ टाइम, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है कैंसिलेशन या कैब्स नहीं है या जो भी है उसको ये लोग टैकल कर सकें. आई थिंक ओके, देखिए सर क्या क्या हुआ. They realize that okay, when there is request within the city or intercity, then it is all just fine. But whenever your requests are involving airport in this way or that, so they realize that there is some problem. Well, they just had a hunch by then. पता नहीं है कि actually problem क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ. They just had a hunch. So what did they decide? They decided to approach it by data analysis. So as I mentioned, there have been legendary companies who have been doing phenomenal job here, like Google, Amazon, Facebook. You already know.
Uber is another one such player. आपके सेल फोन पे एक छोटी सी ऐप दिखती है, but actually there is a hell lot of exercise going behind the scene. They decided to approach it with a data-driven strategy. So what did they do? They collected fresh data. They did not want to rely on any old data. They collected a fresh data for this purpose. How much data? They collected requests for next 5 days, and they were able to collect 7,000 requests, which involved airports. Can somebody tell me why 5 days? तो वीकडेज Because sir working days. हाँ वर्किंग डेज में क्राउड वगैरह कम होता है, तो उस हिसाब से कुछ देख रहे हैं. हाँ, the idea about 5 days is Monday to Friday, not weekend, because pattern change होता है weekend पे. वर्क डेज में वर्किंग क्लास ट्रैवल करते हैं, बिजनेस, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिशियंस, है ना, ब्यूरोक्रेट्स. वीकेंड पे कौन ट्रैवल करता है? मे बी फैमिली या जो हॉलीडेज पे आ रहे हैं या जा रहे हैं. सो पैटर्न चेंज हो जाएगा. So they did not want to bias their data collection. But again, my question is again the same. Why 5 days? क्योंकि सर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं लाइक एंटरप्रेन्योर्स या जो बॉसेस वगैरह होते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, दे ओनली गो टू द एयरपोर्ट्स फ्रीक्वेंटली, और वो इन्हीं फ्रीक्वेंट कस्टमर्स पे शायद एनालिसिस करना चाहते होंगे. नहीं, मेरे कहने का मतलब था why 5 days? Why not a month? Or why not maybe 3 months? Or why not maybe 6 months? जितना ज्यादा डेटा होगा उसमें बायस उतना ही कम होगा, मेरा एनालिसिस उतना ही सब्सटेंशियल होगा. But sir, that would be not accurate, I guess. For the accuracy, they choose 5 days. तो एनोमलीज प्रिवेंट करने के चक्कर में ज्यादा नहीं होगा. आई मीन इफ 5 डेज लें तो. नहीं, get my question right again. Within 5 days, they were able to collect 7,000 request data, which involved airport. What if they have waited to collect the data for 1 month? They would gather some 20,000 or 30,000 rows, and maybe that data is more substantial, isn't it? They will not want to waste time. Now somebody is making sense. You realize, people? Now start thinking it like from a business point of view. डेटा एनालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें एक्सेल चलाना आता है या पाइथन चलाना आता है. You got the idea what Ali has mentioned? अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट प्रॉब्लम. बट अगर वो प्रॉब्लम है, देन इट इज बिजनेस लॉस, नो? द मोर वी वेट, द मोर वी लूज. तो शायद ये आइडिया रहा हो उनका. चलो देखेंगे इस बारे में आज. अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, हियर इज द लिंक. आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको. दिस इज द लिंक जो अभी आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के लिए मैंने यूज किया है, जो नोटपैड फाइल बनी थी ना, द टेक्स्ट फाइल जिसमें मैं ये नोट्स बनाता जा रहा था. तो these are notes just for you to go for a quick report in case it comes to that. तो डाउनलोड कर लीजिए. मेनवाइल ये प्रॉब्लम भी देखते रहिए. इसके बाद उन्होंने क्या किया? दे माइंड द डेटा ऑन 6 एट्रीब्यूट्स. ये एट्रीब्यूट्स आपको समझ आ रहे हैं? ऊबर की एक्सेल शीट अगर बन रही हो आपके रिक्वेस्ट की, तो उनके कॉलम क्या क्या होंगे और इन कॉलम्स का मतलब क्या है, समझ आता है? Request ID, that is a unique key.
कल हमने बात की थी, तो हर रिक्वेस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। यार ऐसा हो सकता है ना कि बाय चांस बिल्कुल एक ही दिन, एक ही समय, एक ही सेकंड पे 2 अलग-अलग कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यस और नो? जस्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी इफ आई एम इन दिल्ली, तो सीपी से मैं भी एयरपोर्ट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप भी सीपी से रिक्वेस्ट कर रहे हो एयरपोर्ट की, बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं हम लोग, तो आइडेंटिफाई होना चाहिए ना डिफरेंटली। सो दैट इज रिक्वेस्ट आईडी। टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, दैट इज बेसिकली टाइम स्टैम्प, जैसा आपने देखा था एक्सेल में। तो डेट एंड टाइम, DDMMYY, HHMMSS, ये कुछ इस फॉर्म में बात हो रही है कि किस दिन किस टाइम पे कोई रिक्वेस्ट रेज हुआ है। सो दैट इज टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। देन देयर इज ड्रॉप ऑफ टाइम, कि वो राइड एंड किस समय की है आपके ड्राइवर ने, ड्रॉप किस टाइम किया है पैसेंजर को। तो अगेन DDMMYY, HHMMSS, so these are timestamps. Pick a point, your analyst is doing something genius. पिक अप पॉइंट वो ऐसे नहीं कर रहा है कि यहाँ से एयरपोर्ट में सिटी, कहाँ से सिटी, कहाँ से, वो कह रहा है सिटी टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टू सिटी, जस्ट टू मेक हिज लाइफ इजी। यस और नो? सिटी में तो कहीं से भी आ सकता है ना रिक्वेस्ट। हमारी प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे कंसंट्रेटेड है। देन देयर इज ड्राइवर आईडी। उन्होंने अपने हर ड्राइवर को कुछ आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, तो आपका एनालिस्ट वो भी कुछ देख रहा है, देखना चाहिए क्या उसको, सही कर रहा है वो? तो देखिए सर, मेरे कहने का मतलब है, जस्ट रियलाइज द जीनियस ऑफ द एनालिस्ट हु हैज डन दिस, हु डिलीवर्ड दिस। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं उबर को, तो थिंक अबाउट इट, उनकी एक्सेल शीट में क्या क्या डेटा वो गैदर करते होंगे मेरे बारे में। रिक्वेस्ट आईडी, ड्राइवर आईडी, पैसेंजर रेटिंग, पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, द रूट टेकन, द टाइम कंज्यूम्ड, द फेयर चार्ज, मोबाइल नंबर, मोबाइल लोकेशन, ईमेल आईडी। यस और नो? मैं उसी से लिंक करना चाह रहा हूँ आपको, जो कहानी आपने सीखी है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो सीखा है वो सिर्फ गुरु ज्ञान नहीं है, वो प्रैक्टिकली कैसे होता है। डेटा कलेक्शन, डेटा तो दुनिया भर का है उनके पास, बट नाउ इस बिजनेस प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए क्या उसे वो सारा डेटा चाहिए? वो कह रहा नहीं चाहिए मेरे को सारी दुनिया का डेटा। रिमेंबर, पहले डेटा कलेक्ट होता था, फिर ETL होता था, फिर एनालिस्ट डेटा प्रिपेयर करता था अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रॉब्लम। वो वही कर रहा है। उसको नहीं चाहिए 50 पैरामीटर्स, ही इज हैप्पी विद जस्ट 6 attributes which he thinks are essential for this kind of analysis. And last but not the least, final status of the request, के फाइनली उस रिक्वेस्ट का हुआ क्या। तो क्या देख रहा है वो, फाइनली इन रिक्वेस्ट का क्या होता है, कंप्लीट हो जाती हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर कंप्लीट हो जाती हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर क्या हो जाता है, इनको कोई ड्राइवर कैंसिल कर देता है, ये भी हो सकता है, सही बात है। या फिर क्या होता है कि ओके, बुकिंग हो ही नहीं पाई, पैसेंजर बुकिंग करना चाहता था और वो देख रहा है नो कैब अवेलेबल, उसके विसिनिटी में कोई कैब है ही नहीं। व्हाट डू यू से? यही तो 3 बात हो सकती है या और भी कुछ हो सकता है? ये नहीं आया किसी के दिमाग में? यार पैसेंजर भी तो कैंसिल कर सकता है, लेकिन आपका एनालिस्ट क्या कह रहा है? सर लेकिन उसके अंदर जो रिक्वेस्ट है वो उबर की तरफ से फुलफिल नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर पैसेंजर ने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी तो उसमें उबर का तो कोई फॉल्ट नहीं हुआ। हुआ दैट दैट सर बराबर। गौरव, Yes. हाँ जी, द पॉइंट है, उसने 7000 रिक्वेस्ट कलेक्ट किए, लेकिन वो कैसे रिक्वेस्ट थे, विच वर या तो कंप्लीट हो जाते हैं या ड्राइवर कैंसिल कर देता है
और इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो कैब्स अवेलेबल ही नहीं दिखते उसको। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कैंसिल बाय पैसेंजर भी तो हो सकता है, पैसेंजर भी तो कैंसिल करता है, लेकिन योर एनालिस्ट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उसने ऐसे रिक्वेस्ट की बात नहीं कर रहा हो जो पैसेंजर ने कैंसिल कर दिया। व्हाट डू यू थिंक? इज ही मेकिंग अ मिस्टेक? इज ही डूइंग इट डेलिबरेटली और इज ही मेकिंग अ ब्लंडर? व्हाट इज योर आइडिया? सर डेलिबरेटली कर रहा है। हाँ जी, actually the case. It is not that he is ignorant of that. No, he is very well aware of that. वो फिर भी नहीं ले रहा है, और क्यों नहीं ले रहा है? वही जो गौरव ने बोला। See, again, he is doing something genius. अगर पैसेंजर ने कैंसिल की है रिक्वेस्ट, Uber has no control over it. ऐसा नहीं कि वो बिजनेस लॉस नहीं है, लॉस तो है यार। पैसेंजर ने आईडी बुक किया था, लेकिन फिर वो फॉर सम रीजन द पैसेंजर हैज ऑप्टेड फॉर सम अदर ऑप्शन रादर देन यू, तो लॉस तो है, लेकिन उसका रीजन क्या हो सकता है? अ पैसेंजर कैन हैव एन नंबर ऑफ रीजंस टू कैंसिल, नो? बट सर क्या अगर पता? जैसे उबर की वजह से प्रॉब्लम हो, जैसे टाइम पे ना पहुंची, तब भी तो कैंसिल कर सकते हैं पैसेंजर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देयर कैन पैसेंजर कैन हैव सेंसिबल रीजन, पैसेंजर कैन हैव नॉनसेंस रीजंस आल्सो, एंड देयर आर umpteen नंबर ऑफ रीजंस पॉसिबल। आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे? क्या पता बट वो सर ओला लेकिन उबर अगर दोनों ट्राई कर रहा था। मैं बता रहा हूँ, क्या पता उसने ओला उबर दोनों ट्राई किए, ओला पहले पहुंच गई या सस्ते पैसों में पहुंच गई, कैंसिल। वेरी रीजनेबल योर पैसेंजर इज। क्या पता उसकी कुछ सेटिंग हो गई, कोई रिलेटिव मिल गया, कोई फ्रेंड मिल गया, या किसी के साथ कार पूलिंग हो गई। रिक्वेस्ट तो रेज की थी उसने, लेकिन क्या पता कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया, कैंसिल। And I don't know if I must say that, but okay, I will anyway say that. These were a couple of sensible reasons. We, the Indians, we, the proud Indians, we are the only breed who have nonsense reasons also. व्हाइट कार बुक हो गई, व्हाइट में नहीं जाऊंगा। या बुकिंग डाली थी उबर गो में, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि शायद डिजायर आ जाए। अब वो वैगन आ रही है, डिफॉल्ट अपग्रेड हुआ नहीं, कैंसिल। जब तक कार आ रही है तब तक सोच रहे हैं कि सिगरेट पी लेता हूँ। अब इतने में कार आ गई तो सिगरेट नहीं फेंकेंगे, ड्राइवर से लड़ेंगे, तो बैठने देना, वो मना कर रहा है, कैंसिल। यू मे नॉट ट्रस्ट मी, हो सकता है, बट these actually happened at a point of time. I don't know if you remember those times. Uber जब इंडिया में आया था, they didn't charge any cancellation fee. It has been quite some years. We people, we forced Uber कि हाँ कैंसिलेशन चार्ज मारो हमें, नहीं तो हम नहीं सुधरेंगे। तो ठीक है, कहने का मतलब वो ठीक ही कर रहा है ना डिस्टर्ब। पहली बात, पैसेंजर का रीजन आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि उसने किस रीजन से कैंसिल किया है। उसका रीजन बिल्कुल सेंसिबल हो सकता है, लेकिन आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। और गलती से अगर आइडेंटिफाई कर भी लिया तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हाउ डू यू कंट्रोल पैसेंजर बिहेवियर? यू डोंट हैव एनी से इन दैट, नो? यू कैन नॉट फोर्स पैसेंजर टू डू एनीथिंग। So very intelligently and very deliberately, this analyst is not bothering about that. He is interested in seeing what are the parameters which Uber can control. वहीं पर बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो डेटा प्रिपेयर हो गया है, लेट्स गो टू सम डेटा माइनिंग। एंड डेटा माइनिंग में हम क्या देखते हैं? पैटर्न्स
trends, reverse trends. You remember that? No? यही करते थे, वही समझने का कोशिश करेंगे. और ये पैटर्न्स, ट्रेंड्स या रिवर्स ट्रेंड्स हम कैसे देखते थे? With the help of visualization. What else? The easiest and most comprehensive way. तो वही देखने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या क्या देखता है हमारा एनालिस्ट. तो he's creating a graph of collective 5 days request कि किस दिन मंडे टू फ्राइडे कितने रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे हैं इन जनरल, जिनमें एयरपोर्ट का कुछ ना कुछ लेना देना होता है. सो दीज आर द रिक्वेस्ट विच आर कमिंग एवरी डे. तो कभी पैसेंजर एयरपोर्ट जा रहा होता है, कभी एयरपोर्ट से आ रहा होता है. एंड वी सी दैट मंडे टू फ्राइडे कुछ ऐसा पैटर्न है. व्हाट डू वी सी? एनी ऑब्जर्वेशन है? Number of requests. हाँ, वाई एक्सिस, दिस बार हाइट इज शोइंग how many requests we receive per day. So x-axis is the day. It is showing date, July 11 kind of thing. It is actually it is Monday to Friday. Anything noteworthy here? Monday and Friday, sir, the requests are high. On Monday and Fridays, requests are a little bit higher than other days, but all in all, अगर मैं देखूं तो more or less same ही कहानी है every day. Nothing very pinpoint worthy. Pinpoint करने जैसा ऐसा कुछ नहीं दिखाया अभी. But ठीक है, it is good to see. Analysis शुरू हो चुका है. और क्या देख लेना चाहिए? ऑन एन एवरेज कितनी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास? हाँ, वो तो देख ही रहे हैं. टाइम शायद इम्पोर्टेंट. चलो देखते हैं. उसका आइडिया है, ये भी देख लेते हैं इनमें से कितने रिक्वेस्ट एयरपोर्ट जाने के लिए आती हैं और कितनी रिक्वेस्ट एयरपोर्ट से वापस सिटी आने के लिए होती है. Seems like a good idea. And we happen to see this. ये जो टोटल रिक्वेस्ट आई थी, इनमें से उसने क्या देख रहा है? दिस स्काई ब्लू पार्ट इज द पार्ट जो रिक्वेस्ट पिकअप पॉइंट सिटी था, यानी पैसेंजर सिटी से एयरपोर्ट जाना चाहता था. सिटी में कहीं पे उसका पिकअप पॉइंट था और ड्रॉप होना चाहता था वो एयरपोर्ट पर. सो दैट इज द ब्लू पार्ट. द पिंक पार्ट बोल सकता हूँ सर? क्या बोलना चाहिए? क्या शेड है ये? गर्ल्स, कैन यू हेल्प मी? व्हाट इज दिस कलर? हाँ, बॉयज के लिए तो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो खत्म हो गया सर. चलो जो भी है, whichever shade it is. This pink shade, it is telling me when pickup point was airport. So the passenger wanted to go from airport to somewhere in the city. The pickup point was airport. Any observation? During Thursday and Friday, number of requests from city to airport is more. ओके, डे वाइज थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. कुछ दिन रिक्वेस्ट सिटी से थोड़ी बहुत ज़्यादा रही हैं, कुछ दिन रिक्वेस्ट एयरपोर्ट से थोड़ी बहुत ज़्यादा रही हैं. बट थिंक अबाउट इट, इतना थोड़ा सा डिफरेंस दिस में हैपन बाय चांस ऑल्सो. आई मीन दैट इज जस्ट एन आइडिया. हो भी सकता है किसी रीजन से हो रही हो, लेकिन हो सकता है हाँ, इट इज जस्ट लाइक दैट फॉर नो पर्टिकुलर रीजन. तो अगेन वेल, थोड़ा सा पैटर्न है लेकिन कुछ खास ऐसा नहीं है जिससे फॉर विच आई शुड रेज माय आईब्रोज, राइट?
Next his idea is, let's see, अगली बार क्या कहता है वो, he says let's see what happens to these requests. And we see this. Pay attention to the legend, which color represents what. So these are the daily requests, day wise. अभी तक हमें कुछ खास पैटर्न नहीं दिख रहा था. Now we see that this blue part is the rides which were completed. So far so good. Green part is the rides or the requests, not rides. These are the requests which faced problem of no cabs availability. Okay. And finally, that again pink shade or whatever you want to call it, that shows the rides which were the requests which were cancelled by your drivers. यही सब तो हो रहा है. Anything in particular? Sir, instead of using this stacked up bar graph, would it be better to use normal vertical bar graphs with every status side by side? Maybe we can do that when it comes to us. Maybe सर ऊपर इसके अंदर तीनों स्टेटस कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा ज्यादा है कम है, सब मतलब एक कॉमन बेस से स्टार्ट नहीं हो रहा है. क्या बात करते हो यार, ये पता नहीं चल रहा है देख के, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है. सर जैसे ट्रिप्स कंप्लीटेड तो समझ में आ जाता है. जैसे अभी ये ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो ग्राफ है इसमें माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन अगर एक कॉमन बेस से स्टार्ट होता है देन इट विल मेक इट मच इजियर टू टेल ना. See, we are not doing it for entirely getting statistics. We are doing it just to find out some patterns or trends initially. कि क्या मैं कुछ ऐसा unusual pattern देख रहा हूँ. Exact numbers पे जाने के लिए we will not stick to bar graph only. We will do deep data mining. We will go into tabular form. वो आप देखेंगे जैसे pivot में आपने देखा था. We will pivot this data and get into exact numbers. So for now we are not interested in that. For now I want just quick information. Hanji, any pattern do you identify here? Anything noteworthy information do you see here? Sir, number of trips completed are the highest on Monday. और कोई बात? So cars are not available. So like it's a huge data. Like cars are not available. Like people are trying to book a ride, but cars are not available on the given time. चलो So देखते maybe हैं. they need to, you चलो know, देखते हैं. देखिए, दो चीजें सब्सटेंशिएट हो रही हैं यहाँ पर. नंबर 1, मैं अगर रोज का देखूं मोर और लेस 50% भी ऐसे रिक्वेस्ट नहीं है जो कंप्लीट हो रहे हैं. मोर देन 50% ऑफ राइड्स आर नॉट फुलफिल्ड. वो रीजन कुछ भी हो उसका, या तो कैंसिल हो जाते हैं या कैब अवेलेबल नहीं होती. बट दिस अमाउंट टू मोर देन 50% ऑलमोस्ट डेली. यस और नो? तो जो अभी तक हमारे को प्रॉब्लम विच वाज अ हंच, विच वाज जस्ट अ हंच, इट इज सब्सटेंशिएटेड हियर. How it is substantiated? How it is coming? It is coming as a tangible number that more than 50% of requests are going unfulfilled when there is airport involved. And to make things worse, what else? Guys, it is happening every day.
every day 50%, more than 50% of requests are going unfulfilled for this reason or that. Just imagine the business loss. Yes or no? उनके सीईओ या एवीपी या जीएम दैट काइंड ऑफ पर्सन अगर वो देख रहे होंगे, हाँ तो मिनी हार्ट अटैक आया होगा ना देख के. Getting back to this, my first question, why 5 days? I think now it makes sense. What if I waited for 3 months to just collect the data? ये जो लॉस हो रहा है, अभी जो 5 दिन का लॉस हुआ है, वो होता ही जाता, वो डेली हो रहा होता, और मैं डेटा कलेक्ट कर रहा होता उससे. So the idea is, let's quickly get some data and let's quickly run some analysis and maybe we will be able to figure out something. और डेटा कलेक्ट करने से हाँ मना थोड़ी किया है किसी ने, डेटा कलेक्ट भी करते रहेंगे, we will collect it for another 3 months or 6 months, लेकिन हम अपना डिसीजन के लिए वेट नहीं करेंगे. We will start improving this way or that. Another thing which became evident here is, what is that? It seems like daily on an average some 15-20% ड्राइव कैंसिल हो जाती हैं एंड डेली ऑलमोस्ट 35 to 40% डेटा ये मेरे को दिखा रहा है दैट नो कैब्स आर अवेलेबल. मेरे ख्याल से ये भी हम देख पा रहे हैं कि कौन सा प्रॉब्लम मेजर है. यस और नो? दिस इज 15 to 20% ऑफ कैब्स एंड दिस इज, हाँ इतना मतलब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो देख के ही आइडिया लग रहा है. रफली 35 to 40% प्रॉब्लम है कैब्स अवेलेबिलिटी का. यस ऐसा ही कुछ हो रहा है. हाँ जी, क्या करना चाहिए अब क्या करना चाहिए? Find out the reason why cars are not available. So we will increase the number of cars. Yeah. सर कार्स के नंबर से इंक्रीज कर देना चाहिए. हमने देखा मेजर प्रॉब्लम, चलो कैंसिलेशन का प्रॉब्लम है, हल्का बड़ा सा है, लेकिन इतना बड़ा कंसर्न नहीं है. व्हाट इज द टाइमिंग्स? द बर्निंग इशू इज कैब अवेलेबिलिटी. हाँ कौन बोला टाइमिंग? सो करांग. हाँ जी गौरांग. ओके गौरांग, strikes again. Gaurang, you got a beautiful name. You know the meaning of this name? Yeah, sir, actually, Garang was an incarnation of Lord Krishna. So I got my name from there. Okay. Okay. Sir, Jayant is also a beautiful name, sir. Hanji, somebody spoke something? Nothing. Okay. Okay. Remember this? You remember this definition of data mining? And then I said there is another definition of data mining which is by far most suited to data mining. What was that? Sir Einstein said something. आइंस्टाइन सर के कहने का मतलब वही था जो गौरांग ने कहा है, इतनी जल्दी से कैब बढ़ाने मत पहुंचो. अभी हमने बहुत जल्दी से देखा कि लगता है मेजर इशू तो कैब का है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, हाँ चलो कैब इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ कैब शुड बी इंक्रीजिंग. बट इज इट रियली सो, या कुछ और प्रॉब्लम है? आइंस्टाइन सर वही कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत और देख लिया करो यार, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, जो दिख रहा है वो हमेशा होता नहीं है. ठीक है, तो देखें क्या होता है. देखें
रादर देन डिसाइडिंग के लगता है कैब्स अवेलेबिलिटी इशू है, गौरांग कह रहा है कि यार टाइम के हिसाब से भी देख लो ना सर, इतनी जल्दी फैसला मत करो। तो हम वही कर रहे हैं कि क्या ये कैब अवेलेबिलिटी का इशू डेली तो हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है ये भी तो देखा है। So now this analyst has segregated this data into hour-wise data rather than date-wise। वो क्या कह रहा है, मैं इन 5 दिन देखता हूँ हर घंटे में कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो फॉर एवरी डे उसने क्या किया है, लाइक मिडनाइट से 0th hour मीन्स मिडनाइट से 1 AM इन द मॉर्निंग कितनी रिक्वेस्ट आई हैं 5 दिन मिलकर के, इतनी आई हैं। So your sound is not clear, sir. Where is my sound clear? Can somebody else? Yes, sir, clear, sir. Clear it is? Okay. So similarly, we have segregated these 7,000 requests into कि पर आवर मेरे को कितने रिक्वेस्ट आते हैं। तो 5 दिन का कलेक्टिव डेटा उसने पर आवर्स में ब्रेक कर लिया है, एंड देयर इज वन बार फॉर एवरी आवर ऑफ द डे, so 24 bars in total, starting midnight and goes up to 11th hour in the night. Do we see something here? What do we see? In the morning hour, like 5 to Mhm. 10, the number of requests are very high as compared to the, and so as to the during the night also. Correct. The morning and evening. I see a clean slot in the morning and similarly in the evening जहां पर डिमांड अनयूजुअली हाई है, एंड देखिए होना भी चाहिए। These are morning hours, starting from 5 or 6 and going up to 9 or 10. So these are the rush hours जहां पर रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आ रही है। कहाँ के लिए? एयरपोर्ट के लिए। ऐसे ही इवनिंग में है, इवनिंग में 6 से लेकर के इट गोज अप टू परहैप्स 10 और 11 मे बी, जहाँ तक भी है, लेकिन क्लीन स्लॉट मेरे को दिख रहा है, एक मॉर्निंग में है, एक इवनिंग में है, जहाँ पर बहुत हाई डिमांड्स आ रही हैं। मतलब क्या है हिसाब से, ये एयरपोर्ट के रिक्वेस्ट हैं, इसका मतलब क्या है, इतने सारे लोग क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसी टाइम पे? शायद उनको या तो फ्लाइट पकड़ना है, यस और नो, उनके फ्लाइट डिपार्ट होने का टाइम हो रहा है, फ्लाइट डिपार्चर का टाइम हो रहा है इसलिए, या वे लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और वो सिटी जाना चाह रहे हैं इसलिए, यस और नो। एयरपोर्ट ऐसे ही तो इन्वॉल्व होगा, दो ही कारण हो सकते हैं ना। It seems like there is massive activity on airport in these hours, in these particular hours. या तो फ्लाइट डिपार्चर बहुत ज़्यादा होते हैं या फ्लाइट अराइवल बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ तो ऐसा हो रहा है, तभी इतने सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आए हैं। आगे देखते हैं, वो कह रहा है चलो ये भी देख लेते हैं, इनमें से कितने रिक्वेस्ट सिटी से आते हैं, कितने एयरपोर्ट से आते हैं, शायद कुछ पता चले। पीक स्लॉट तो मिल गया मेरे को, तो लेट्स सी। During the morning, more people want to go to airport, and during the evening, more people want to go to city. अब कुछ पैटर्न देखने को मिला। नाउ दिस पैटर्न इज वेरी एविडेंट। हम अभी जो सोच रहे थे कि क्या हो रहा होगा, ये लोग क्यों इतने सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब शायद देख करके समझ आ रहा है। मॉर्निंग स्लॉट में क्या हो रहा है, पिकअप पॉइंट सिटी, यानी लोग सिटी से एयरपोर्ट जाने के लिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फ्लाइट छूटने वाली है उनकी। देयर आर मेनी फ्लाइट डिपार्चर्स इन दीज आवर्स, जिसकी वजह से सिटी से एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग। कितना है ये? ऑलमोस्ट आई थिंक इफ नॉट एनी लेस, 80% तो कह सकता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 80%।
80% लोग तकरीबन जाना चाह रहे हैं सिटी टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड दिस साइड इवनिंग स्लॉट में क्या सीन है? इफ नॉट 80 इवन देन आई कैन सेफली से 75% तो ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं और सिटी जाने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। यस और नो? कहानी कुछ कुछ तो आ रही है समझ में हमें। People तो who ये are नोट going in the evening are returning in the evening. कोई एक आदमी ये नोट बना सकता है? लिख कर रखेंगे जरा। हमने पहले देखा मॉर्निंग स्लॉट, एक मॉर्निंग स्लॉट है विच इज से 5 to 9. I'm not interested in time exactly, but there are several hours, 4-5 hours of morning beginning at 5. There are similarly 4-5 hours in the evening beginning at 6. ऐसा ही कुछ है। इवनिंग मॉर्निंग स्लॉट में क्या हुआ है? I am saying 80% people are going city to airport. कोई नोट कर सकता है ये चीजें, एक कहानी? बिकॉज ऐसे ही मैं करता था व्हेन आई वाज इन द इंडस्ट्री। टीम में से एक को खड़ा कर दिया व्हाइट बोर्ड पे कि लिखते जाओ कि मैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, एंड बाद में हम उसको पीपीटी में कहीं ना कहीं फिट कर देंगे जब क्लाइंट से बात करने का टाइम है। इवनिंग स्लॉट में क्या होता है? 75% ऑफ पीपल आर रिक्वेस्टिंग एयरपोर्ट टू सिटी, एयरपोर्ट से सिटी जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी टू एयरपोर्ट वाले बहुत ही कम है, केवल 25%। चलो ये भी देखें कि इन स्लॉट्स में हमारी रिक्वेस्ट का क्या क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या होता है। एंड इफ वी सी दैट आई गेट टू सी दिस, एंड व्हाट डू वी सी? During the morning hours, half of the problem occurred due to the cancellation. Not half, but yeah, maybe 20% or 30%. And सर इवनिंग के टाइम मेजॉरिटी केसेस हमारे अवेलेबिलिटी की वजह से देखते रहिए। मॉर्निंग स्लॉट में मैं देख रहा हूँ मेरे राइड कंप्लीशन खराब है, हार्डली 35-40%। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेजर प्रॉब्लम क्या है मॉर्निंग स्लॉट में, हाँ जी, क्या नो कैब अवेलेबिलिटी अभी भी प्रॉब्लम है? Cancellation is the problem. यस, सो इट इज नॉट दैट कि अवेलेबिलिटी का ही प्रॉब्लम होता है हमेशा, कैंसिलेशन भी मेजर इशू है इन अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट। ऑलमोस्ट 40% और मे बी एटलीस्ट 35% तो मैं देख सकता हूँ एवरी डे इज दिस सिनेरियो कि मेरी राइड कैंसिल हो जा रही है, ड्राइवर कैंसिल कर दे रहे हैं। माइंड यू, ये पैसेंजर ने कैंसिल नहीं किया है, पैसेंजर तो जाना चाहता था। अगर पैसेंजर कैंसिल कर रहा होता वो तो इस डेटा में है ही नहीं। ये तो वो है जो मेरे ड्राइवर कैंसिल कर रहे हैं। अब ये मेरी प्रॉब्लम है। यस और नो? So we get to see there are some 40%, almost 40 ना भी मानो, चलो 35 मान लो, 35% which is a major chunk, it is as good as the rides completed. इतनी राइड्स कैंसिल हो जाती हैं। इवनिंग में क्या सीन है जी? No cars Cars available available. is the main problem. Availability. Almost 50%, sir. इवनिंग में हम देख रहे हैं, या इफ नॉट मोर देन 50% देन ऑलमोस्ट 50%, तो मैं कह सकता हूँ सर्टेनली 50% ऑफ राइड्स सेज नो कैब्स अवेलेबिलिटी। कैंसिलेशन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, दैट कैन बी फॉर वेरी फेयर रीजन, तो वहाँ कुछ ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन नो कैब्स अवेलेबिलिटी दैट इज हिटिंग लाइक एनीथिंग। क्या हो रहा होगा? कुछ कहानी समझ आ रही है? So morning time drivers are not able to fulfill the rides
because since it's or real early morning, like to reach at 5, they need to get up at 4 or something. And since they're driving late at night by airport to city, so they need a certain amount of rest to like continue in the morning for that day. I guess that might be the reason. Mm-hmm. Either they in morning they have to increase the number of drivers. करेंगे क्या वो तो अभी बताएंगे. Okay. माइंड यू, डू यू रियलाइज अभी तक हमने किया क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दैट स्टैटिस्टिक हमने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स सोचे थे, वो बहुत सारे सोच रहे थे हम कि ऐसा एनालिटिक्स होता है वैसा होता है. हमने किया क्या अभी मालूम है आपको? वेयर आर वी इन दैट स्टेज? अभी तक हम लोग डिस्क्रिप्टिव में ही हैं. यस और नो? हमने अभी कोई तीर नहीं मारा है, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि ये डेटा मेरे को दिखाता क्या है. आई हैव सम एग्जिस्टिंग डेटा एंड व्हाट दिस डेटा इज डिस्क्राइबिंग. वो कहीं पे दिखा रहा है अवेलेबिलिटी ऐसे इशू है, कहीं पे दिखा रहा है कैंसिलेशन का इशू है, कहीं पे दिखा रहा है इतने रिक्वेस्ट एयरपोर्ट को आते हैं. बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड हमने सिर्फ वही देखा है अभी तक. लेट्स पुट दिस स्टोरी टुगेदर नाउ. लेट्स पुट दिस स्टोरी टुगेदर. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू बी डबल श्योर. एक काम और कर रहा है, वो क्या कर रहा है? इससे पहले कि हम फैसला करें, वो कह रहा है मैं रोज के ग्राफ अलग अलग बना के देख रहा हूँ. अभी तक जो भी देखा हमने, वी वर लुकिंग कलेक्टिव फॉर 5 days. वो कह रहा है यार रोज का अलग अलग देखूं. सो ही इज लुकिंग फॉर ऑल द 5 days डिफरेंटली. He has separated that data into subsets according to each day, Monday, Tuesday, and up to Friday. और सिमिलर ग्राफिक वो देख रहा है. क्या देखता है? किस दिन कितने रिक्वेस्ट आए, पिकअप पॉइंट कौन था, और फाइनली उन रिक्वेस्ट का हुआ क्या क्या. Situation is still the same. हाँ जी, वो वही देख रहा है. अगेन गौरव जो कह रहे थे आप, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा बहुत समझ आ गई होगी बात. मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं देखना है कि रोज कितने रिक्वेस्ट का क्या हुआ. मेरे को थोड़ा सा कहानी समझना है कि हो क्या रहा है. तो आई थिंक वो हम देख पा रहे हैं यहाँ से. क्या देख पा रहे हैं आप? मोर और लेस डेली एक ही कहानी हो रही है, है ना. रोज वैसे ही इवनिंग में पीक स्लॉट है, एक मॉर्निंग में पीक स्लॉट है 4-5 घंटे का. अगर मैं देखूं पिकअप पॉइंट कैसे कैसे आते हैं, तो डेली लगभग वैसी सी ही कहानी हो रही है यार. मॉर्निंग में सिटी से एयरपोर्ट भागते हैं लोग, इवनिंग में एयरपोर्ट टू सिटी भागे जा रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट का स्टेटस देखूं तो अगेन वही कहानी देख रहा हूँ लगभग डेली. मॉर्निंग स्लॉट में मैं देख पा रहा हूँ कैंसिलेशन प्रॉब्लम लगता है हर बार डेली. इवनिंग स्लॉट में देख रहा हूँ अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा है डेली. Yes or no? It's happening right in front of your eyes. Yes. What is this indicating is, अगर रोज ऐसा ही पैटर्न देख रहा हूँ तो शायद उसका रीजन भी सेम ही हो रहा है एवरीडे. उसका कारण भी एक ही है. रोज रोज नया कारण की वजह से ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिल सकता यार. एक दिन बाई चांस हो सकता है, डेली थोड़ी हो रहा होगा कुछ. So it means something substantial is there behind this. Let's put the story together now. अभी तक हमने जो देखा, हमने क्या देखा? We went through some visualizations, we saw some patterns here and there, and now we are trying to reason, diagnostic. We are trying to reason that what is the possible cause? Why is it possibly happening? तो उसको हम बोल रहे हैं hypothesis. We never say कि this is the reason of that, because we can never be sure. There is a saying in data science that correlation is not causation.
अगर दो चीजों में कोरिलेशन दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से ही ये हो रहा होगा, नॉट नेसेसरीली। तो वी नेवर से रीजन ऑफ दैट, सर we are ये भी तो हो calling it, सकता है सर। it is a possible hypothesis. Somebody was saying something. सर मैं बोल रहा था कि ये भी तो हो सकता है सर कि लाइक ट्रैफिक की वजह से ड्राइवर को लाइक राइड कैंसिल करना हाँ, वही करना पड़ता हो। वही कुछ रीजन देखेंगे हम, वही कुछ पॉसिबल रीजन देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द डेलिब्रेशन वी विल डिसाइड कि क्या वाकई दिस रीजन, ये जो हाइपोथेसिस हम रख रहे हैं, दिस मेक सेंस और नॉट। ठीक है, हो तो बहुत कुछ सकता है, देखते हैं। What was the observation? We saw two very peak demand high slots, जिनमें डिमांड बहुत हाई आती है। Usually it is between 5 am to 10 am in the morning and 5 pm to 10 pm in the evening. थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ऐसा ही हो रहा, 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे, यही तो देखा था हमने। डेली थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, बट यूजुअली इट इज दिस स्लॉट। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स, इट मींस देयर इज मैसिव एक्टिविटी एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के हिसाब से ये रश आवर्स है, फ्लाइट अराइवल है या डिपार्चर है वो अभी आगे पूछते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, इन मॉर्निंग स्लॉट, एएम स्लॉट या मॉर्निंग स्लॉट, 80% के आसपास रिक्वेस्ट हम देख रहे थे सिटी टू एयरपोर्ट, लोग सिटी से एयरपोर्ट भागे जा रहे हैं। क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है इसमें? व्हाट इज द पॉसिबल हाइपोथेसिस बिहाइंड इट? इट मींस फ्लाइट डिपार्चर्स आर वेरी हाई कंपेयर टू फ्लाइट अराइवल्स इन द मॉर्निंग। यस और नो? इसीलिए तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहां पर भागे जा रहे हैं उधर को। आने वाले तो नहीं है इतने, जाने वाले बहुत ज्यादा हैं। सही बात है। और हमने क्या देखा था, इन द सेम ग्राफ we saw that in evening slot almost 80, if not 80, 75% requests came airport to city. It means arrivals बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे फ्लाइट अराइव हो गए हैं उस समय एयरपोर्ट पे, पैसेंजर अब खड़ा है वहां पर, and they are trying to go to city somewhere. That is why so many requests. So arrivals are way too much than departure. फिर हमने क्या देखा, मॉर्निंग स्लॉट में कैंसिलेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, ड्राइवर्स कैंसिल कर देते हैं मॉर्निंग स्लॉट में, ऑलमोस्ट 40% हमने देखा था अभी। ज्यादातर राइड इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि ड्राइवर ही कैंसिल कर देता है। क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है इसका? थिंक अबाउट इट। अभी अभी हमने देखा मॉर्निंग में डिपार्चर बहुत ज्यादा है, अराइवल बहुत कम है, तो उनको एयरपोर्ट ले जाने के लिए ड्राइवर अगर वहां पर पहुंच गया और पैसेंजर अराइवल बहुत कम है एयरपोर्ट पे, उसे वापस आने के लिए राइड मिलेगा नहीं जल्दी से, एंड मे बी दे विल हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मे बी बीइंग ऑन द ग्राउंड योर ड्राइवर realizes that better than you, so they cancel it altogether. Yes or no? Seems like a possible reason. I'm not saying reason, I'm saying possible reason. तो शायद कैंसिलेशन का प्रॉब्लम इस वजह से भी आ सकता है। और क्या देखा हमने, इवनिंग स्लॉट में नो कैब्स अवेलेबिलिटी, उन पैसेंजर्स को कैब नहीं मिलता जो एयरपोर्ट पे आके खड़े हो गए हैं इवनिंग में। हाँ, क्यों नहीं मिलता? अरे कहाँ से मिलेगा भाई, एयरपोर्ट से डिपार्चर बहुत कम है, तो सिटी से जो एयरपोर्ट जा रहे हैं पैसेंजर वही बहुत कम है, उन्हें लेकर के कैब्स पहुंचे ही नहीं एयरपोर्ट। जब कैब्स नहीं पहुंचे एयरपोर्ट तो क्या दिखेगा वहां पे? Cars not available. नो कैब्स अवेलेबल, यही तो हो रहा है। थोड़े बहुत जो पहुंच गए कैब्स सिटी टू एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट टू सिटी वालों को, थोड़े बहुत लोगों को मिल गए, बाकी सबको क्या दिखेगा? नो कैब्स अवेलेबल। दैट इज व्हाई 50% टाइम्स दे आर सेइंग नो कैब्स अवेलेबल। अभी यही तो देख रहे थे।
सही बात है, कुछ जान लग रही है इस कहानी में? ये जो कहानी हम बैठाते हुए ला रहे हैं, बात बनती सी तो लग रही है। शायद ऐसा कुछ हो रहा हो, पॉसिबल तो है। On top of that, there is one more reason which which nails others, which is, you see, the last reason. Both of these time slots, both of these rush hours of airport, they are rush hours in the city as well. Yes or no? यार विद इन सिटी जब लोग ट्रैवल करते हैं, वो कब ट्रैवल करते हैं? कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अपने बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई वॉट एवर, विद इन सिटी जो ट्रैवल करते हैं लोग, कोई अपने शॉप पे जा रहा है, कब ट्रैवल करते हैं? यही तो टाइम होता है, 6, 7, 8, 9 इवनिंग में वापस लौट रहे होते हैं लोग अपने घर, जो भी काम किया है दिन भर। किस टाइम लौटते हैं? 6, 7, 8, 9। यस और नो? तो मे बी योर ड्राइवर में थिंक लाइक दैट, नो? आपके ड्राइवर को ऐसा लग सकता है ना कि यार विद इन सिटी, बिकॉज अगर पर्टिकुलर आवर्स में बात करें, पीक आवर्स में जो एयरपोर्ट में प्रॉब्लम है, पीक आवर्स के, आपका ड्राइवर क्या देख रहा है कि सिटी में भी तो पीक आवर्स हैं। वो 1 घंटा एयरपोर्ट जाऊंगा, फिर वहां पर वेट करना पड़ेगा, फिर 1 घंटा में एयरपोर्ट से वापस आऊंगा। क्या करना है एयरपोर्ट जाके? यहाँ मिल तो रहे हैं मेरे को राइड, धनाधन मिल रहे हैं। You are getting the idea? Everybody got this idea? So this is something diagnostic. We are trying to diagnose for a possible, we are diagnosing our observations from descriptive analytics, and we are trying to build up a possible hypothesis that this can be a possible reason, or maybe number of possible reasons behind the problem which we are behind the phenomena which we are seeing, which is happening here. Coming to next, predictive analytics. Now in this scenario, in this particular scenario, predictive analytics का कोई खास स्कोप है नहीं, because reason being because कुछ खास करने को है नहीं, unless and until we do something, इसमें प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ खास है नहीं। देखो एयरपोर्ट तो अपने टाइम बदलने से रहा, ऊबर के कहने से। यस और नो? पैसेंजर बिहेवियर वो चेंज होने से रहा, ऊबर के कहने से। सो अनलेस एंड अनटिल वी डू समथिंग अबाउट इट, तो प्रेडिक्शन में कुछ खास कहने के लिए है नहीं। जैसी कहानी चली आ रही है ऐसी कहानी चलती जाएगी, इफ वी डोंट डू समथिंग। So now let's gather things together. We have described the data, we have diagnosed it for a possible reason, and we know that predictive is not much of a fruit here. Same thing will continue till eternity if we don't do anything about it. Now, which we said, descriptive analytics, let's combine these everything, put this together, and let's come up with a possible solution. What could be done? What could be done? क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? ऊबर ने क्या किया वो भी बताऊंगा सर, लेकिन पहले आप बता दो। What should be Sir, done now? Uber can provide more compensation to drivers going on the airport route. Like we already have on the airport Uber pool kind of thing, so they don't have to wait for the car to come from the city and take the passenger. The cars are available At the airport itself. yeah. They came up with that recently. Not then, it took time, but yeah, they are now into that also. But okay. What else? Anything Sir, else? अगर हम सेग्रीगेट कर दे, लाइक
लास्ट रीजन जो है कि ऑफिस टाइमिंग्स, ड्यूरिंग द ऑफिस टाइमिंग्स आल्सो द कैब ड्राइवर्स प्रेफर इन सिटी the customers who are present in the city. So I think segregation of the cabs, that कि मतलब ये number of cabs in city operate करेंगी और बाकी city to airport का अलग कर दे शाम के लिए especially. So maybe that. Okay. ठीक है, और किसी का कोई सजेशन? There is still some time. We can Uber can start a special separate service for the people who are going to airport in these peak hours time. Okay. चलिए बताता हूँ. Higher ratio of like if they are traveling to a distance of 10 kilometers and in the city they are charging 300 for that. So they can give it them a higher ratio if they're traveling to like airport. So that can be much more lucrative for them. Okay, I'll tell you a couple of things what they did. This analysis was the genesis of this thing, which one of you mentioned. कि airport पे ही एक there will be certain number of cars which will be available at airport at any point of given time, any given point of time. This came, this evolved through months and years of analysis and continuously monitoring it and improving upon the thing. At that time, what they did? One of you said it. They created, this was genesis of Uber airport service. It came in Delhi also for a very short period of time. If आप में से किसी लोगों ने travel किया होगा, there was a dedicated carpool in the peak hours. बाकी सारे hours में all cars are Uber, normal Uber. But in a certain period, in certain peak hours, some cars will become Uber airport. They will only receive requests to and fro airport, not anything else. To keep it exclusive, other cars who are traveling in city to city, they will not receive any request involving airport. They will only be limited to city. हाँ जी, कुछ सॉल्व हो गया होगा इसका प्रॉब्लम? थोड़ा बहुत कुछ सॉल्व हुआ होगा इसका? Yes, sir. Creating an exclusive pool for peak hours, they have created Uber Airport. They will only run to and fro airport. Sir, Others but will only what run within city. Sir, But sir, the problem still prevails now that drivers may be preferring within city requests because they might have to wait and the waiting time is still the same. Now came other problem because why drivers still join this pool? So the fantastic thing about Uber, they are very, very employee friendly company. They say that customer first, but employee rather first. They didn't force their drivers to do that, but they played a trick. You know what was that? To enter into that pool, into this Uber airport, they approached the driver who lived nearby airport. Look at the peak hours. Morning hours begin at 5 or 6 in the morning. Evening hours, they end at 9 or 10 in the evening. यार ऐसे ड्राइवर को चार्म होगा ना थोड़ा सा कि घर के पास ही मेरा दिन शुरू हो जाए और घर के पास ही मैं जब भी whenever I want to end the day, I will drop my last ride and I will go home. Yes or no? So this was again something intelligent to do. They did not force, they did not mandate anybody. They just approached the right people. And then when things became rolling, they did another intelligent thing. They declared some incentive to these drivers. Who will pay that incentive? Of course, the passengers.
but it did not, Uber didn't worry about it. Can you think of why? Because mostly your passengers are bureaucrats and corporates. Think about it, yeah. If I am at Mumbai airport, Ematicus is paying for my travel, no? What does it matter if Uber charges me 300 or 400? I will anyway be reimbursed. मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कैब मिल जानी चाहिए जल्दी से, बिकॉज मैं वहाँ पहुँचने में लेट हो रहा हूँ जहाँ मेरे को पहुँचना है. मेरे को अपनी मीटिंग टाइम से शुरू करनी है. So Uber charged a reasonable amount from passengers, and the best part was they distributed it cent to cent. They didn't earn a single penny from that incentive. They paid everything. They distributed everything into their, on basis of their own scale. They distributed entire commission earned that way uh, by this surcharge thing as incentive among their drivers. So drivers जिनका waiting time ठीक है, आ रहा है waiting time, but number one they have charm because अब उनको city to city नहीं भटकना है, वो airport के आसपास अपना दिन खत्म करके घर जा सकते हैं. On top of that, they are earning some incentive, and that incentive is being paid per ride, so they have a charm to complete as many rides as possible. उनकी कोशिश रहेगी कि कैंसिल ना करें, उनकी कोशिश रहेगी कि जहाँ भी पैसेंजर अवेलेबल हो उसके आसपास ही कहीं पहुँच जाए, जल्दी से जल्दी राइड अवेलेबल हो जाए. Make sense? So this was one exemplary use case of data mining by legendary company Uber. Now, how did you like it? You got some broad idea what kind of domain you are entering? Now, before I depart, ये जो सॉल्यूशन किए हैं, पहला कि एक एक्सक्लूसिव कारपूल बना दिया जाए एयरपोर्ट के लिए इन द पीक आवर्स. उसमें कौन ड्राइवर्स रहेंगे? वही रहेंगे जो एयरपोर्ट के आसपास रहते हुए. हालांकि इट इज नॉट अ मैंडेट. आना चाहते हैं जरूर आए. जो एयरपोर्ट के पास नहीं भी रहना चाहते हैं, अगर वो भी आना चाहते हैं वो भी आ जाएं, नो प्रॉब्लम. बट दे अप्रोच्ड intelligently the right people. And then on top of that there was some incentive. What do you think? ये जो प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा था, क्या हो गया होगा after these steps taken? Trip completed increase हो गया होगा, and the cancelled and no cars available problem may have been solved to some extent. Improve situation. जी, वही बताना चाह रहा हूँ. Get the idea right also. See, analytics and the decisions taken after this data-driven approach, they can do something. Something like, after all these steps, the cancellation went down by 20% and the availability issue went down by some 10%. कहने का मतलब क्या है? सेट द एक्सपेक्टेशन राइट. आप ये सोचोगे क्या ये एनालिसिस करने से सब कुछ सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई? नो, इट डजंट वर्क दैट वे. इट इज एनालिसिस, इट इज नॉट मैजिक. It is not miracle happening. Anybody heartbroken by this fact? Get the idea right. It has been solved. To an extent. Your voice is way too much distorted, Jan.
Didn't get anything you said. As said, it has been solved to some extent. That will happen. So that was my intention. So set the expectation right. It solved this problem by around 20% extent. It solved another problem by some 10% extent. And this is huge, people. This is not joke. This is considerable. Yes or no? Yeah, if I am getting 10% revenue, additional revenue, I am able to secure somehow. Make sense? It is huge. If I am able to curb my loss by 20% on one front, that is huge. So this was a use case I wanted to discuss with you. I hope it gave you some perspective of what you are going to do in near future. So I hope you enjoyed this. I hope you liked it. It was not. Did I bore you? It should not have happened. That was not the intention. It was just to give you some perspective of what is coming your way. It is just around the corner. Okay. Well, guys, if there is any question, maybe you can text me in your Telegram group, and maybe I will be able to take that. It is because I have to rush to another session, another phone call, just within a few minutes. So sorry for today. I will not be able to take any questions as of now. And I'll upload the recording ASAP. I hope you are getting the recording just in time. There is a tag of 24 hours to upload the recording. I'm trying to do it before that. Sir, tomorrow, sir, Okay. what you will teach us so that पहले से पढ़ के आए. हाँ जी. Tomorrow, sir, what you will teach us? Tomorrow it is your Chris DM So framework. इससे I'll discuss that. Some mathematics again. थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्टिव आज किया था, थोड़ा सा कल और देखेंगे. right. And tomorrow, and जैसे आज आप एक यूज केस देख रहे हैं, tomorrow we will see there is a framework called Chris DM framework that we will discuss. तो रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे आ रही है? जस्ट वांटेड टू आस्क. Recordings are coming as a YouTube channel. या सर जो मेल आया था वही ना, सब्सक्राइब जो चैनल है मतलब इमार्टिकस का. हाँ, ऐसा करके आ रहा होगा कुछ. हाँ, मेल पे आया था पहले. So there is There are playlist of some your like batch. link available. हाँ, लिंक अवेलेबल होगा ना आपको? नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा अगर ऐसा हुआ है. Yes. यस सर, शेयर. ठीक है, मैं टेलीग्राम पे उसका आपके प्लेलिस्ट का It will be link drop that कर same link. ठीक है. Okay, well guys, that's for today. So hope you liked it, and I'll connect with you tomorrow same time, and we will do. Yes, sir. Thank you, sir. I'll try to do something interesting again tomorrow. Okay guys, thanks and very welcome. Bye bye. Thank Take you, care sir. everybody. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. थैंक यू सर.